So yesterday we did the account of liabilities, children. Today we'll be doing the accounts of assets. So in the category of assets, आप T account किसका किसका बनाएंगे? Fictitious assets का T account बनेगा, children. I repeat, fictitious assets. It could be preliminary expenses. It could be share issue expenses. It could be underwriting commission. It could be discount on issue of shares or debentures. Then, children, we'll have the T accounts for long-term investments in the category of assets. Thereafter, fixed intangible assets. And then we'll have the account for tangible assets. So tangible assets का account आपने class 11th में सीखा था when we did the chapter called depreciation, children. Assets का ledger बनाना सबको आता था, बस उसी का एक cut short ready करेंगे हम लोग. Okay, चलो let's start with the first one. Fictitious assets. It could be, children, preliminary expense. It could be share issue expense. Visible to everybody? Yes. So in my example, share issue expense and preliminary expenses given. The opening balance of share issue expense is 52 and that of preliminary expense is 60, and closing balance of preliminary expense is 50 and that of share issue expense is 55. Visible to everybody? So let's work first on preliminary expenses. So the opening balance is 60. We'll be putting two balance brought down, 60,000, and closing balance is 50. We'll be putting buy balance carried down, 50,000. Comparing the opening and the closing value, children, it decreases or increases? It decreases. ध्यान से मेरी बात सुनिएगा. It is going down. It is going. It means this difference of 10,000 must be written off. अब रिटर्न ऑफ का मतलब क्या होता है सर? पेमेंट तो हमने कर दिया. ध्यान से सुनिएगा. अगर बच्चों पूरा का पूरा 60,000 मैं एक ही ईयर में पीएल में डेबिट करके राइट ऑफ कर लूं, प्रॉफिट्स वुड भड़ाम से गो डाउन. विल वी बी हैविंग गुड स्ट्रेंथ टू पे डिविडेंड? नो. दैट्स व्हाई द कंपनीज मेक एन अरेंजमेंट कि हम थोड़ा थोड़ा हर साल राइट ऑफ करेंगे, पूरा एक साथ राइट ऑफ नहीं करेंगे. सो द जर्नल एंट्री फॉर राइटिंग ऑफ इज PL account debit to preliminary expenses. If you remember that derivatory question, in PL account we wrote two preliminary expense. So in preliminary expense we'll put what, children? By PL. By So shortage on the credit side represents that we have written off. राइट ऑफ करेंगे, पीएल में डेबिट करेंगे, डेफिनेटली चिल्ड्रन नेट प्रॉफिट वुड गो डाउन. तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से नीचे आ गया हमारा नेट प्रॉफिट आ गया. अब वापस ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा चिल्ड्रन? ऐड करना पड़ेगा टू गेट द करेक्ट अमाउंट ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट. इज दिस heard well by all? पक्का? Please update this very quickly in your workbook, children. Very quickly. So my question was this, that preliminary expense will always have opening balance more, closing balance less. It could be same, but it can never be more than opening. Why? When we pay this, children, we pass the entry, for example, preliminary expense account debit to bank. The date of registration was 30th June 2022. Till this date, I repeat, till this date, whatsoever we have paid in the name of incorporation is known as preliminary expense. Now the company got registered on 30th June. And था क्या सर इसके अंदर? Advocate के expenses, printing charges, newspaper advertisement and all that. 30th June tak, the name is preliminary. Same type of charges we paid after 30th June. Can we categorize it as preliminary? Can we categorize it as preliminary? No, Not at No, sir. not at all. ये preliminary नहीं है, ये बन गया post preliminary. क्या बन गया? तो preliminary expense, whatsoever we have spent
till this date is say 60,000. अब इसके बाद जो भी खर्चा हो चाहे ऐसे ही हो जाए, क्या इस नाम से रिप्रेजेंट करेंगे? नो नो नो, एब्सोल्युटली नॉट. आपने रेस्टोरेंट में कोल्ड कॉफी ऑर्डर की, 3 घंटे तक आपने उस कॉफी को पिया ही नहीं, फैन चल रहा था और अब वो कोल्ड कहलाने के लायक नहीं है, तो अब मम्मी बोलेंगी कॉफी जल्दी से पी लो, ऑलरेडी खराब हो चुकी है. शी शुडंट से कोल्ड कॉफी जल्दी से पी लो, बिकॉज अब वो कोल्ड है ही नहीं. लॉजिक समझ में आया कि नहीं? घर में गेस्ट आए, मम्मी सेड ब्रिंग सम कोल्ड ड्रिंक, आप ठंडा पानी लेके पहुंच गए, कोल्ड ड्रिंक है. मम्मी शुड बी सेइंग ब्रिंग सम एरिएटेड वाटर ड्रिंक, मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है. अच्छा अच्छा, थम्स अप लेके आना है. अंडरस्टूड और नॉट? तो टेक्निकली और जनरली कोल्ड ड्रिंक का मतलब फर्क हो सकता है. तो प्रीलिमिनरी मींस स्पेंट अप टिल द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. तो उसके बाद अगर खर्च भी हुआ तो वो प्रीलिमिनरी के नाम से कभी पहचाना ही नहीं जाएगा. आई रिपीट, प्रीलिमिनरी के नाम से कभी पहचाना ही नहीं जाएगा. तो मेरे पड़ोस में एक लड़का रहता है, उसकी शादी होने वाली है, तो शादी अभी अगले महीने है, कार्ड आज ही आया है. सो उसके घर वाले उसकी होने वाली वाइफ को अपनी बहू नहीं बोल सकते, होने वाली बहू बोलेंगे ना. बट वंस द मैरिज हैज टेकन प्लेस, विल दे बी कॉलिंग हर एज होने वाली बहू? एब्सोल्युटली नॉट. द बॉय वुड बी कॉलिंग हर एज फियांसे. फाइनेंसे नहीं सर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिख देते हैं उसको, समझ में गया? बट शादी के बाद कभी भी वो उसको फियांसे के नाम से नहीं बोलेगा, वो वाइफ ही बोलेगा उसको. तो फियांसे शब्द वेडिंग जब तक हो नहीं जाती बस तभी तक एग्जिस्ट करता है, उसके बाद इस शब्द का आम जीवन में उन दोनों की कोई लेना देना नहीं होगा. समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? पक्का? सो वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, ऑलवेज मशीनरी टू कैश. देयर आफ्टर आप उसी इंप्लॉय को उतना ही अमाउंट दे रहे हो, बट इंस्टॉलेशन के लिए नहीं दे रहे, रेगुलर काम के लिए दे रहे हैं, तो इट्स अ रेवेन्यू नेचर एक्सपेंस. बट इंस्टॉलेशन पे जो दिया वो कैपिटल नेचर. अब वो वेजेस कभी भी कैपिटल नेचर के फिर से नहीं होंगे, क्योंकि अगेन एंड अगेन वी आर नॉट गोइंग टू गेट द मशीनरी इंस्टॉल्ड. सेम इज द केस हियर ओनली चिल्ड्रन. टिल दिस डेट व्हाटसोएवर इज स्पेंट इज प्रीलिमिनरी. आगे भी ऐसा ही खर्च हुआ, बट विल इट बी नोन बाय दिस नेम? नो. आई एम वेयरिंग दिस शर्ट चिल्ड्रन, सबको नजर आ रहा है? इफ आई से कि मैंने क्लॉथ खरीद के इसको स्टिच करवाया, तो मैं बोलूंगा कि मैंने कपड़ा खरीदा कपड़ा खरीदा कपड़ा खरीदा. अब जब 2 बार धुलने के बाद मेरे को ये पहननी होंगी, व्हाट आई विल बी सेइंग टू माय धोबी? कपड़ा ले आओ, शर्ट ले आओ. फॉर्म हैज बीन चेंज्ड. फॉर्म यूटिलिटी आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में. तो अब इसकी यूटिलिटी प्रीलिमिनरी एक्सपेंस के नाम पे नहीं है, तो इट विल गो डाउन डेफिनेटली, बिकॉज हमने इसको राइट ऑफ किया है. तो ये कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता, कम जरूर हो सकता है. समझ में आई बात? Children heard this? Children heard? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Moving ahead with the second category titled as what, children? Share issue expense. What's the opening balance? And what's the closing balance? 52,000 opening. And closing is 55. 5,000. मैं closing को 50 भी लिख लेता हूं और आप भी लिख लीजिए. So first and foremost we'll put the opening balance 52 and closing balance में 2 values हम लिखेंगे. One was already written, one I expect everybody to put. लिख दिया बच्चों? 52 से अगर ये 50 हो गया, it means हमने इसे राइट ऑफ किया है. चलन अगर इसे राइट ऑफ किया होगा, definitely this would have been debited to profit and loss account. Yes or no? Yes, sir. 52 से ये 50 हो गया, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हुआ होगा. जब ये पीएल में डेबिट हुआ होगा चिल्ड्रन, इट मस्ट हैव रिड्यूस्ड योर नेट प्रॉफिट्स. वापस ऊपर जाने के लिए क्या करेंगे? ऐड करेंगे अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. डीएलडब्ल्यू याद है ना? डीएलडब्ल्यू याद है? डेप्रिसिएशन लॉसेज एंड आइटम्स रिटर्न ऑफ की कैटेगरी में ये आएगा. तो ये शेयर इशू एक्सपेंस कम भी हो सकता है और ज्यादा भी. तो कम कैसे हुआ मैंने आपको बता दिया, इट इज रिटन ऑफ. सर ज्यादा कैसे हुआ? एन नंबर ऑफ टाइम्स वी आर परमिटेड टू इशू शेयर. 52 था, अब 55 हो गया. व्हाट्स द चेंज? वी हैव पेड more expenses on issuing shares. Journal entry would be
share issue expense account debit to bank. So children, to bank money is flowing out, तो minus कर देंगे, because it is related with shares, which activity it would be going into? Financing. तो share issue expense increase भी हो सकता है और decrease भी. If it decreases, it has the same phenomena, written off, but if it increases, we mean payment. Please do not become a मिठू, तो एक तरह रट लिया सर जो भी आएगा हम ठाकुर है सर हम बैंक लिखेंगे बस. अरे भाई ऐसा नहीं होता है. Asset अगर reduce हो रही है, it could be sale, it could be depreciation. Will the journal entry be same? No, no, no. तो depreciation है, PL से ताल्लुक रखता है. Sale purchase है, cash book से ताल्लुक रखता है. So please put it children very quickly. Yes, sir. So ये था आपका fictitious asset account. अब आते हैं बच्चों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स पे. क्लास 11th का asset account याद होना चाहिए, वही है ओपनिंग बैलेंस इज व्हाट चिल्ड्रन एंड क्लोजिंग बैलेंस इज व्हाट 70,000. says investments of the book value 15 was sold for 25. What was the entry for sale of asset children? Bank account to asset. debit to asset. Here the asset is लाठी, long term investment. 15 का asset 25 में बिक गया children, profit और loss? Profit. So we'll be putting 2 PL, और अगर loss में बिका तो PL account debit. सुनाई पड़ गया? So Yes, sir. आप asset account में so called posting क्या करेंगे सेल वैल्यू की? By bank. By bank. And what's the value given to us? Very good. When children we have profit here और आपने PL अकाउंट बनाया तो आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स अंग्रेजी में, और अकाउंटेंसी में लिखेंगे बाय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स. तो अगर आपने PL अकाउंट में लिखा बाय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में क्या लिखेंगे? 10 का प्रॉफिट हो गया. ध्यान दीजिएगा 70 plus 25 is what? 95 minus 60 is what? 35 minus 25 is what? गलत. 10,000. गलत गलत गलत. 25 plus 70 is what? 95 minus 60 is what? 35 minus 10 is what? This is your answer जो आपको मिला. तो डेबिट में 25 का शॉर्टेज था. Debit side and asset account reflect three things as taught in the chapter depreciation in class 11th. Opening balance हो नहीं सकता, already given. Profit हो नहीं सकता, already we know. Oh, now ये क्या होगा? Purchase of asset. And what is the journal entry for purchase of asset children? Purchase to bank? Asset account debited to bank account. Debit to bank. कुछ लोग आज सवेरे ही चाइना की फ्लाइट से लैंड हुए हैं. Got it clear? तो चाइनीज मैथ थी, अब चाइनीज अकाउंटेंसी है. सो आपको मिसिंग आइडेंटिटी यहां पे क्या रिफ्लेक्ट हो रही है चिल्ड्रन? व्हाट इज द मिसिंग आइडेंटिटी दैट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड? परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. समझ में आ गया? सो वी पुट ओपनिंग बैलेंस ऑन द डेबिट एंड क्लोजिंग ऑन द क्रेडिट. सेल, लॉस, प्रॉफिट, परचेज, चार में से 2-3 आपको पता ही होंगे. डेबिट शॉर्ट है, इन तीनों में से कोई एक आंसर होगा. ये हमेशा दिया होगा, आंसर इन दोनों में से कोई एक आएगा. क्रेडिट शॉर्ट है तो इन दोनों में से कोई एक आएगा. अगर आपको प्रॉफिट लॉस मिलता है, DLW एंड ड्रिप याद होगा एडजस्टमेंट फॉर का, ये ड्रिप की कैटेगरी है और ये DLW मेल की कैटेगरी है. इफ क्रेडिट इज शॉर्ट, सेल वैल्यू वुड बी डिटरमिन्ड. इफ डेबिट इज शॉर्ट, परचेज वैल्यू वुड बी डिटरमिन्ड. Heard this well children? Heard this well? Please complete it. Quick children, quick. So if our cash book is available to us children, sale value भी मिलेगी डेबिट में as well as purchase value भी. कैश बुक में तो सब था ही जब हमने पहला क्वेश्चन किया था. Because it is not given, इसीलिए फ्लैशबैक में जाके क्राइम सीन प्लॉट करना पड़ रहा है. तो अगर आप एक्चुअल बिजनेसमैन हैं चिल्ड्रन, तो क्या आप भी ये आई स्पाइस खेलेंगे? आप लेजर ओपन करेंगे, आपके सामने सारे लेजर अकाउंट्स हैं. तो ये अप्रोच सिर्फ स्टूडेंट को अप्लाई करनी पड़ती है. रियल लाइफ में इनडायरेक्ट मेथड का कैश फ्लो बनाने के लिए
do the businessman will be replotting these activities? उसके पास लेजर बुक खोलते हुए सारा डेटा सामने आ जाएगा. अंडरस्टैंडिंग और नॉट? पक्का? कंफर्म? चलिए. Done all children? Everybody did this? Shall I proceed further? Children done? Yes, sir. Yes, sir. Intangible assets. So intangible assets के लिए एक छोटा सा एडिटिंग भी कर लीजिए. P, P, E and IA, especially for IC students. आपको गुडविल का ओपनिंग बैलेंस 60 नजर आ रहा है चिल्ड्रन, एंड क्लोजिंग बैलेंस कितना नजर आ रहा है? वेरी गुड. इट कुड बी 70, इट कुड बी 55, कुछ भी हो सकता है, तो हम 55 भी लिख लेते हैं. So if opening balance is 60, we'll put two balance brought down, and closing balance is 70 or 55. We'll put that as by balance brought down. 60 on the debit, 70 on the credit. Which side sounds short? Debit If side. nothing is mentioned regarding sale, we'll assume this missing identity as what, children? Purchase of asset. समझ में आ गया? बट सर अगर आपने 60 and 55 लिखा है तो what's the difference, children? 5. I can assume, because it is a very less value, as goodwill written off. Had it been a huge shortage, children, I would be considering it as sale. So this could be the missing identity. तो क्वेश्चन आपको सारा डेटा देगा, आपको बस लेजर पोस्टिंग आनी चाहिए. Be quick, be quick. Same with patents, children, no change at all. Same with patents account, children. फर्क सिर्फ इतना है, मैंने पेटेंट्स में डेलिबरेटली सेल और परचेज का जिक्र नहीं किया. रीजन बीइंग कि आपको भी जब पेटेंट या इन सब का अकाउंट मिलेगा, जनरली ओपनिंग बैलेंस ज्यादा होगा और क्लोजिंग कम होगा. छोटा सा रिडक्शन है तो डेप्रिसिएशन, यहाँ पे वर्ड एमोर्टाइजेशन यूज होता है, और अगर ज्यादा लार्ज डिफरेंस होगा तो वी कुड कंसिडर इट एज सेल इवन. सेम थिंग, सेम थिंग. चलिए, लोग कहेंगे सर ये तो 11 में पढ़ा था. फर्नीचर परचेज्ड फॉर ₹42,000 on 1st January 2015. एक और फर्नीचर खरीदा, फिर एक बेच दिया, उसके बदले में नया खरीदा, फिर डेप्रिसिएशन चार्ज किया, फिर एक और नया खरीदा. नजर आया? एग्जैक्टली 11th क्लास वाला क्वेश्चन है. चलो 11th क्लास वाला क्वेश्चन है. गॉट इट क्लियर? चलिए, सो लेट्स रिकनेक्ट चिल्ड्रन एंड अंडरस्टैंड tangible asset का अकाउंट कैसे बनेगा. Let's reconnect and understand. हाँ उज्जवल जी, आपका भी जवाब एकदम सही था प्रीलिमिनरी को लेकर.